GTS test number 1, group 1, botany. Question number 1. Read the following statements carefully and select the correct option. Option 1. Artificial classification was based upon one or few characteristics, mostly morphology. Correct है. Number 2. Natural classification is called 3D or horizontal system. Actually, it is not called 3D, it is called 2D. Horizontal सही है, लेकिन 2D should be there. Number 3. Linnaeus gave natural classification on the basis of number and nature of stamen and carpel. It should be Linnaeus gave artificial classification, not the natural. ये बात भी गलत हो गई. Option number 4. In natural classification, phylogeny and natural affinities were also included. Actually, natural affinities were included, but not the phylogeny. Phylogeny include की गई थी phylogenetic classification में, not into natural classification. Again wrong statement हो गया. तो correct पूछा है तो option number 1 is the answer. Question number 2. Actual account of habitat and distribution of plants of a given area is provided by which of the following taxonomic aid? ये actual account clearly mention किया है. आंसर हो गया option number 2, flora. Question number 3. These are some given attributes of a taxonomic aid. Consider them and state the name of taxonomic tool. Okay, attribute first. Collection of stuffed and preserved large animals. B. Collection of skeletons of animals. C. Set up in educational institutes. And D. Collection of plants and animal specimens for study and references. E है collection of dry specimens also. These all attributes are of museum. Only the museum includes the skeleton also. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सेटअप है, प्रिजर्व करता है लार्ज एनिमल्स को स्टफ्ड कंडीशन में, और ड्राई स्पेसिमेंस भी कलेक्ट करता है. तो सारा ऑप्शन मिलाकर हो गया ऑप्शन नंबर 3, म्यूजियम इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. Which among these statement is incorrect? Option 1. Species Plantarum and Systema Natura were written by Linnaeus. Exactly correct. ठीक है. Homo sapien is the scientific name of human beings which represents binomial nomenclature. Actually, it represents trinomial nomenclature. Wrong statement हो गया second one. Option 3 भी देख लीजिए. Study of principles and procedure of classification of organism is taxonomy. That is correct. Carolus Linnaeus is the father of taxonomy and binomial nomenclature. Correct. तो incorrect पूछा है, option number 2 is the answer. Question number 5. Select the incorrect match among these. First, three kingdom system. साइंटिस्ट का नाम लिखा है हेकल. Exactly correct. हेकल ने प्रपोज किया था थ्री किंगडम सिस्टम. 4 किंगडम सिस्टम, साइंटिस्ट का नाम है कॉपलेट. Exactly correct. 2 kingdom system of course proposed by Linnaeus. And 6 kingdom system आगे लिखा है Dougherty and Allen. It was proposed by Carl Woese. ये incorrect statement हो गया. Incorrect पूछा है match. 4th is incorrect match. Question number 6. Which among these criteria were not used by R.H. Whittaker in 5 kingdom classification? First, reproduction. It was used there. Cell wall and flagella? No, not used by Linnaeus. Second is not used. Third, thallus organization. Of course, body organization बोलिए या thallus बोलिए, एक ही बात, ये यूज किया गया था. Mode of nutrition, it was the most important criteria used by Whittaker. तो आंसर हो गया सेकंड. Question number 7. Select incorrect statement with reference to eubacteria. Number 1. Show most simple metabolic diversity. Incorrect statement. Show highly diverse metabolic activity, not simple. Second, simple in structure, complex in behavior. ये correct बात है. Simple in structure होते हैं, complex in behavior है. Third,
Some are photosynthetic or chemosynthetic. This is also correct. Number 4, vast majority are heterotrophic. That is also correct. So correct, incorrect पूछा है, option number 1 is incorrect. Question number 8. Mycoplasma causes various diseases in plants, animals and human beings. Which among these is not caused by mycoplasma? Okay. Little leaf of brinjal caused by mycoplasma. Citrus canker, no. It is bacterial disease not caused by mycoplasma. Witch's broom caused by mycoplasma and pleuropneumonia of course mycoplasma ही cause करता है. Not caused पूछा है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 9. स्टेटमेंट ए. Halophils are obligate anaerobes and capable of converting CO2, methanol and acid into methane. Actually ये converting कंपोनेंट्स इनटू मीथेन, ये तो मीथेनोजन का कैरेक्टरिस्टिक है, हेलोफिल्स का नहीं. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट बी. थर्मोएसिडोफिल्स आर कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग एक्सट्रीमली लो pH, ओके, एंड हाई टेम्परेचर ड्यू टू ब्रांच्ड चेन लिपिड्स एंड रेजिस्टेंट एंजाइम इन सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म रिस्पेक्टिवली. एग्जैक्टली करेक्ट थिंग. ब्रांच्ड चेन लिपिड्स किसमें प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन में, और रेजिस्टेंट एंजाइम है इनटू साइटोप्लाज्म. तो करेक्ट लिखा है, स्टेटमेंट करेक्ट. दोनों में से क्या करेक्ट है? तो ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज incorrect regarding cyanobacteria? Option 1. They are unicellular, colonial or filamentous. Cyanobacteria could be unicellular, could be colonial or filamentous. तो ये correct statement. Number 2. Their colonies are surrounded by gelatinous sheath. बिल्कुल correct. हम Nostraca cannabina के केस में gelatinous sheath या mucilage sheath कीजिए, correct बोलते हैं. Option 3. They are photosynthetic, autotroph, having chlorophyll A, C एंड फाइकोबिलिन. यहाँ पे क्लोरोफिल सी नहीं आना चाहिए, क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिलिन करेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे सी वाली पॉइंट रॉन्ग हो गया. ऑप्शन 4. दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज. करेक्ट. वाटर ब्लूम इज कॉज्ड बाय ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया. तो ये बात भी करेक्ट है. इनकरेक्ट पूछा, ऑप्शन नंबर 3 इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. मैच द फॉलोइंग कॉलम. कॉलम 1, कॉलम 2. कॉलम 1 का ए एक्टिनोमाइसीट्स. एक्टिनोमाइसीट्स इज रे फंजाई, तो इट शुड बी मैच विद 2. आर्कीबैक्टीरिया बी पॉइंट, इट शुड बी मैच्ड विद 4 लिविंग फॉसिल्स. सी माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा इज मैच्ड विद बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ. ओके, इसकी मैक्सिमम सिमिलैरिटीज बैक्टीरिया को रिजेंबल करती हैं. बोला गया या फ्रेज दी गई बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ. डी साइनोबैक्टीरिया, इट इज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेट, पहले ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म अर्थ पर. तो डी इज मैच्ड विद 3. सारा करेक्ट मैच आता है ऑप्शन नंबर 3. ए मैच्ड विद 2, बी matched with 4, C matched with 1 and D matched with 3. Option number 3 is the answer. Question number 12. Find out incorrectly written statement for Protista. Okay. Number 1. It is nutritionally most diverse group of organism and has no well-defined boundary. Exactly correct thing. 3 types of different types of nutrition वाले करने वाले मेंबर्स प्रोटिस्टा में इंक्लूड हैं. करेक्ट है. नंबर 2. रेड सी इज कॉज्ड बाय रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट. एक्चुअली रैपिड मल्टीप्लिकेशन डाइनोफ्लैजिलेट का होता है, लेकिन वो कॉज करता है रेड टाइप. रेड सी रॉन्ग बात होगी. तो ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट. नंबर 3. ए सेल्युलर स्लाइम मोल्ड शो आइसोगेमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एग्जैक्टली करेक्ट. जो
ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड हैं, इनमें आइसोगेमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर डी, क्राइसोफाइट इंक्लूड डाइटम एंड गोल्डन एल्गी दैट इज डेस्मेट। ये बात भी करेक्ट, क्राइसोफाइटा ग्रुप का नाम और उसमें डाइटम्स और गोल्डन एल्गी डेस्मेट्स को दोनों को लेते हैं। तो इनकरेक्ट पूछा, ऑप्शन नंबर 2 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, consider these statements and select the correct option for diatom. Number 1, they appear yellow, green, brown, blue और red। ये डाइटम्स के लिए नहीं, ये बात तो डाइनोफ्लैजिलेट के लिए करेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। 2, they are mostly marine, photosynthetic and release toxins which may kill other marine animals। Again same thing is caused due to डाइनोफ्लैजिलेट, तो ये बात भी डाइटम्स के लिए इनकरेक्ट हो गई। थर्ड देखिए, देयर सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। एग्जैक्टली करेक्ट बात, डाइटम्स का करेक्टर ही सोप बॉक्स लाइक सेल वॉल की प्रेजेंस है। फोर्थ, देयर सेल वॉल्स हैव स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। ये एट्रीब्यूट डाइनोफ्लैजिलेट का, तो डाइटम्स के लिए करेक्ट पूछा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 40, मार्क द इनकरेक्ट वन रेफरेंस टू फंजाई। ओके, नंबर 1, कॉस्मोपॉलिटन एग्जैक्टली सही है, एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल, ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये बिल्कुल करेक्ट है, फंजाई इन सारे हैबिटाट में प्रेजेंट हो सकता है। नंबर 2, with the exception of yeast, most of the fungi have long, slender, thread-like structure called hyphae। Exactly correct, fungi की सोमेटिक बॉडी ही फिलामेंटस है, हाइफा बोला जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड देखिए, some hyphae are continuous tube filled with multinucleate cytoplasm called stenocytic hyphae। ये भी ठीक है, स्टेनोसिटिक टर्म रिलेट करता है दो बड़ी चीजें, एसेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन, बिल्कुल करेक्ट बात बोला। नंबर 4, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। इट शुड बी सेल वॉल ऑफ फंजाई, नॉट द सेल मेम्ब्रेन। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन 15, select correct match regarding fungi and their disease. फर्स्ट, एस्परजिलस डिसीज कॉज कर रहा है पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है, ये इनकरेक्ट मैच हो गया। पाउडरी मिल्ड्यू एरिसाइसी कॉज करता है, तो एस्परजिलस के साथ मैच इनकरेक्ट हो गया। इन्होंने करेक्ट पूछा है, नंबर 2 है जिब्रेलिन और रिलेट किया बैकेनेस डिसीज, ये बिल्कुल करेक्ट है, जिब्रेला फिजिकोराई, ठीक है, ये बैकेनेस डिसीज ही कॉज कर रहा था। नंबर 3, फाइटोप्थोरा मैच किया गया अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इट इज इनकरेक्ट, फाइटोप्थोरा के इंटेस्टाइन्स के साथ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो शुड बी मैच्ड, ये इनकरेक्ट बात हो गई। एल्ब्यूगो व्हाइट रस्ट ऑफ ग्रेप्स, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफरी शुड बी देयर, तो ये इनकरेक्ट बात हो गई। करेक्ट मैच, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, select reproduction by gametangial contact is found in which class of fungi? गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट मिलता है ओमाइसीटीज क्लास में, तो ऑप्शन नंबर 2 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, select the wrong statement with reference to Ascomycetes fungi. Okay, number 1, their asexual spores conidia are produced exogenously on conidiophore। कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया का फॉर्मेशन एक्सोजीनस है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, एस्कोमाइसीटीज में ही कोनिडिया बनते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात। ऑप्शन नंबर 2, देयर सेक्सुअल स्पोर्स एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली इन सैक लाइक एस्कस, अगेन करेक्ट, सैक लाइक एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते थे, थैले के जैसा सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्कस का, करेक्ट स्टेटमेंट एंडोजीनियस वाला। ऑप्शन नंबर 3, their member Aspergillus is used extensively in biochemical and genetic work, incorrect बात,
बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में न्यूरोस्पोरा को यूज किया जाता है, नॉट इन एस्परजिलस। तो रॉन्ग स्टेटमेंट थर्ड। फोर्थ भी देख लेते हैं। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स आर ईटेबल, ये बात भी करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा, क्लियरली ऑप्शन नंबर 3 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following option contains members of only Basidiomycetes class of fungi? सिर्फ Basidiomycetes के मेंबर्स की बात करनी है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अगैरिकस मशरूम जिसे ईटेबल मशरूम कहते हैं, अस्टिलागो, स्मट फंजाई, ब्रैकेट फंजाई एंड पफबॉल, ये सारे Basidiomycetes के मेंबर हैं। तो ऑप्शन 1 तो करेक्ट है। सेकंड भी देख लेते हैं, पक्सिनिया ऑफ कोर्स रस्ट फंजाई Basidiomycetes का है, मगर सेकंड बात आ गई ट्राइकोडर्मा, और ट्राइकोडर्मा तो ड्यूटीरोमाइसिटीज का मेंबर, इनकरेक्ट बात हो गई। थर्ड ऑप्शन देखिए, ऑल्टरनेरिया, अगेन ऑल्टरनेरिया इज ड्यूटीरोमाइसिटीज क्लास ऑफ फंजाई, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है कोलिटोट्राइकम, ये भी ड्यूटीरोमाइसिटीज का है, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ फंजाई sex organs are absent but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strain or genotype। देखिए, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट ये Basidiomycetes का करेक्टर होता है, और क्लियरली इन्होंने दो वेजिटेटिव सेल्स या सोमेटिक सेल्स का फ्यूजन की बात की, यानी ये बात कर रहे हैं प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, ये तीनों चीजें सोमेटोगेमी के थ्रू हो रही हैं। तो ये सोमेटोगेमी भी मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक Basidiomycetes का, तो ऑप्शन नंबर 2 इज आंसर। क्वेश्चन 20, clamp connections and dolichopore septa are shown by which among these hyphae of agaricus? एक्चुअली अगैरिकस Basidiomycetes का मेंबर, उसी में ही मिलते हैं क्लैम्प कनेक्शंस भी और ऑफ कोर्स डॉलीपोर सेप्टा भी, ठीक है। लेकिन कौन सी वाली स्टेज पर? Basidiomycetes में सिनोसिटिक फंजाई, सिनोसिटिक माइसीलियम प्रेजेंट ही नहीं होती, तो फर्स्ट ऑप्शन तो एग्जैक्टली इनकरेक्ट हो गया। सेकंड देखिए, प्राइमरी माइसीलियम, प्राइमरी माइसीलियम सिर्फ अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल में ही दिखती है। जैसे ही पहला प्लाज्मोगेमी, एक सेल का प्लाज्मोगेमी टर्न हो जाता है, सारी ही सेल्स को क्लैम्प कनेक्शन बना बनाकर प्राइमरी माइसीलियम से सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देखिए, प्राइमरी माइसीलियम कहना है सिर्फ यूनिन्यूक्लिएट माइसीलियम को, सेकेंडरी माइसीलियम कहना है डाइकैरियोटिक माइसीलियम को। इनके केस में कैरियोगेमी लॉन्ग टाइम के लिए डिले की जाएगी, तो यहाँ पर सेकेंडरी माइसीलियम इनका डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल होता है। क्लैम्प कनेक्शन भी सेकेंडरी फेज में ही प्रेजेंट होंगी, तो थर्ड वाला केस, थर्ड सेकेंडरी माइसीलियम इज आंसर। अभी देखिए, फोर्थ लिखा है यूनिन्यूक्लिएट टर्शियरी माइसीलियम, टर्शियरी माइसीलियम यूनिन्यूक्लिएट होती ही नहीं, यूनिन्यूक्लिएट स्टेज तो अर्ली लाइफ साइकिल में ही कंप्लीट हो जाती है। पूरी बात का करेक्ट हाइफा कौन सा होगा? सेकेंडरी माइसीलियम वाला, थर्ड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, ल्यूकोसिन दैट इज क्राइसोलैमिनेरिन एंड पैरामाइलम बॉडीज आर रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ रिस्पेक्टिवली। एक्चुअली ल्यूकोसिन मिलता है डायटम्स में, ठीक है, यानी क्राइसोलैमिनेरिन डायटम्स का रिजर्व फूड मटेरियल, एंड पैरामाइलम बॉडी मिलती है यूग्लिना में। तो दोनों ही रिस्पेक्टिवली देखिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इज आंसर, डायटम एंड यूग्लिना। क्वेश्चन नंबर 22, viruses possess all the following properties except number 1 absence of mutation। no, वायरसेस में तो बहुत ही कॉमन है म्यूटेशन, ठीक है, हाईली म्यूटेबल स्टेट मिलती है, तो ये इनकरेक्ट बात हो गई। सेकेंड, एबिलिटी टू गेट क्रिस्टलाइज, ऑफ कोर्स करेक्ट, वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हाँ जी, आरएनए और डीएनए दोनों में से कुछ भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। फोर्थ है एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, बिल्कुल नहीं होता, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन इसमें नहीं हो रही है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23, ऑड वन आउट विद रेफरेंस टू डीऑक्सीराइबोवायरस, ओके, जिसमें डीएनए नहीं है।
पॉक्स वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इन्फ्लुएंजा वायरस में नहीं, इन्फ्लुएंजा में आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, कोलीफाज 5x174 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, M13 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, लेकिन ये सब भी डीऑक्सीराइबोज है और सेकंड वाला राइबो वायरस है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, मैच द फॉलोइंग कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2। एक साइंटिस्ट ए ऑप्शन में लिखा है इवानोवस्की, इवानोवस्की ने डिस्कवरी की थी वायरस की, तो डिस्कवरी ऑफ वायरस के साथ मैच, ऑप्शन नंबर 2 के साथ मैच। डी है बीजेरिनिक, बीजेरिनिक ने कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम फ्रेज दिया था, तो मैच कीजिए फोर्थ के साथ। सी टैमलिन एंड बाल्टीमोर, इन्होंने रिट्रोवायरस की डिस्कवरी की थी, तो मैच कीजिए थर्ड के साथ। डी स्टेनले, स्टेनले ने क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस किया था और वो भी सबसे पहला डिस्कवर्ड वायरस दैट इज CMV का, तो फर्स्ट के साथ मैच। सही ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 1, A2, B4, C3 एंड D1। क्वेश्चन नंबर 25, which virus consists of 2 copies of single stranded RNA, that is AIDS virus, HIV, option number 1। Question number 26, multiplication in temperate viruses like lambda-phage occurs by, एक्चुअली टेम्परेट वायरस का नाम भी लिख दिया है लैम्डाफाज, और लैम्डाफाज शो करता है लाइसोजेनिक साइकिल। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, consider the given statement and find out the incorrect one। okay, option number 1, chemical nature of infectious particle causing Kuru disease is proteinaceous, of course right, प्रायोन्स कॉज करता है कुरू डिसीज, प्रोटीनेशियस नेचर का है। सेकंड, स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल विच कॉज डिसीज इन प्लांट्स आर वायरॉइड, बिल्कुल करेक्ट, वायरॉइड्स में सिर्फ आरएनए प्रेजेंट और वो भी प्लांट डिसीजेस कॉज करने वाला है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। थर्ड देखिए, T4 bacteriophage has a tadpole-like structure with polyhedral head connected to helical tail, again correct statement, पूरा बैक्टीरियोफाज का करेक्टर। ऑप्शन नंबर 4, tobacco mosaic virus is elongated rod like 300 angstrom long, 18 angstrom in diameter and having 2310 capsomere, it should be 2130 capsomere, wrong बात हो गई। दूसरा, ये नैनोमीटर में आने चाहिए, ये एंगस्ट्रम में पॉइंट्स डाले हुए हैं, तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट सिम्टम्स इन प्लांट्स ड्यू टू वायरल डिसीज। ओके, प्लांट्स के वायरल इन्फेक्शन के बाद क्या क्या सिम्टम आते हैं, उनमें से क्या नहीं है वो बताना है। ऑप्शन नंबर 1, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, बिल्कुल करेक्ट है, वायरल डिसीज होने के बाद प्लांट लीफ रोलिंग कर्लिंग शो करता है। सेकंड है इंटरनोडल इलोंगेशन, ये बात गलत हो गया, इंटरनोडल इलोंगेशन नहीं, इवन ड्वार्फिज्म शो करता है, तो ये सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो गया। थर्ड देखिए, येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, अगेन करेक्ट स्टेटमेंट। फोर्थ है मोजेक फॉर्मेशन, अगेन करेक्ट। ये सारे ही फीचर वायरल डिसीज के हैं एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड आउट रॉन्ग फीचर रिगार्डिंग वायरॉइड्स। Number 1, discovered by T.O. Diner, correct, viroids were discovered by Diner। Number 2, cause potato spindle tuber disease, again correct, virus ये viroid plant diseases cause करता है और potato spindle tuber disease correct है। Number 3, having free RNA, lack of protein coat, again correct, viroid में सिर्फ free RNA, infectious RNA present। Number 4, smaller than virus and consist of high molecular weight RNA, actually high molecular नहीं, low molecular weight RNA, तो wrong statement पूछा, fourth option is incorrect। Question number 30, which of the following are very good pollution indicator as they do not grow in polluted areas? It should be lichens, option number 2 is the answer।
ठीक है, इट इज नॉट लाइक कि दे आर इंडिकेटिंग द पॉल्यूशन लेवल बाय फास्टली ग्रोइंग देयर, इट इज बाय नॉट ग्रोइंग इन पॉल्यूटेड एरियाज। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर 2। 31st, which of the following feature is are the basis for the division of kingdom fungi into various classes? Okay, number 1, mode of spore formation, correct. Number 2, morphology of mycelium, this is also correct. Number 3, floating bodies, ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन है all of these, ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी स्टेटमेंट, ये तीनों ही बेसिस बनाए गए थे फंजाई को क्लासेस में डिवाइड करने के लिए। तो ऑल ऑफ दिस शुड बी आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच अमंग दी। नंबर 1, प्रोटिस्टा सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक है, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट होते हैं प्रोटिस्टा, तो करेक्ट है। सेकंड, प्लांटी यूकैरियोटिक सेल टाइप, दिस इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। नंबर 3, मोनेरा सेल्यूलोजिक सेल वॉल, मोनेरा में पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल प्रेजेंट है, नॉट ऑफ सेल्यूलोजिक, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नंबर 4, फंजाई हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, एनाकार्डियेसी एंड सेपिनडेल्स, okay, are the names of two taxonomic categories of organism Mangifera indica, मैंगो की बात कर रहा है, indicate them respectively। एक्चुअली मैंगो की एनाकार्डियेसी AC सफिक्स के साथ आ गया तो ये है फैमिली नेम, और सेपिनडेल्स एल्स के सफिक्स के साथ लिखा गया है, ये है ऑर्डर नेम। करेक्ट बात हो जाएगी फैमिली एंड ऑर्डर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 34, ब्लैंक दिया है, फिर लिखा इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्चुअली ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरीज में प्लेस करना, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। क्वेश्चन 35, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्लाइम मोल्ड। नंबर 1, their spores are extremely resistant and survive for many years under adverse conditions, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, स्लाइम मोल्ड के स्पोर्स many ईयर तक सर्वाइव कर पा रहे हैं। नंबर 2, their spores possess two walls and dispersed by water current, ये इनकरेक्ट बात हो गई, dispersed by air current, तो ये इनकरेक्ट। नंबर 3, they form floating bodies under unfavorable conditions, बिल्कुल सही लिखा है, which bear spores at their tip, करेक्ट है। नंबर 4, they are saprophytic, राइट है, स्लाइम मोल्ड saprophytic होते हैं, and their plasmodium may grow over several feet, अगेन करेक्ट बात। तो इनकरेक्ट पूछा, ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन 36, bacteria are grouped under categories based on their shape, find which is wrong among these, okay, पहला है फाइबर शेप और लिखा है विब्रियो, यही इनकरेक्ट हो गया, कॉमा शेप होता है विब्रियो, तो ये इनकरेक्ट फीचर हो गया। नंबर 2, रॉड शेप बेसिलस, करेक्ट है। स्पाइरल शेप स्पाइरिलम, ये भी सही है, और स्फीयर शेप्ड कोकस, राउंड को स्फेरिकल को कोकस बोलते हैं, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 इज आंसर। क्वेश्चन 37, recognize these diagrams and select the correct option for these। देखिए A is mucus, देखिए A डायग्राम, D is aspergillus, इन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर 3 में B aspergillus, ठीक है, A mucus थर्ड में, एंड C is agaricus, ईटेबल मशरूम, बटन मशरूम कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3, A mucus, B aspergillus and C agaricus। Question number 38, classification of organisms based on evolutionary as well as genetic relationship। Evolution और genetic relationships का plus, that is phylogenetic relationship,
ऑप्शन नंबर 4 क्लैडिस्टिक बोलिए या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलिए। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 39, बोटेनिकल गार्डन्स प्रोवाइड नंबर 1 नेचुरल हैबिtat ऑफ वाइल्ड लाइफ। बोटेनिकल गार्डन में तो हम एक्स2 कंजर्वेशन की बात करते हैं। नंबर 2 ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन। नंबर 3 एक्स2 कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म एंड नंबर 4 कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स। तो पूरी बातों में करेक्ट और मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर 3 एक्स2 कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म। ऑप्शन 4 क्वेश्चन 14 प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 फाइबर enclosed by tubulin protein। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए टिब्यूलिन प्रोटीन यूकैरियोटिक फ्लैजिला का करेक्टर है, नॉट द प्रोकैरियोटिक, तो रॉन्ग हो जाएगा। नंबर 2 फाइबर मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, ये बात बिल्कुल करेक्ट है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के लिए। नंबर 3 हेलिकली अरेंज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, नो। नंबर 4 मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड 9+2 माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये 9+2 वाला स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक के लिए आएगा। तो प्रोकैरियोटिक पूछा है, ऑप्शन नंबर 2 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोफाज। एक्चुअली LPP1 ये पहला ही साइनोफाज था जो डिस्कवर किया गया था, ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज आंसर। क्वेश्चन 42 द कॉमन फीचर शोन बाय मशरूम स्मट एंड रस्ट इज नंबर 1। देखिए मशरूम भी ईटेबल मशरूम, ठीक है, स्मट एंड रस्ट, एक्चुअली ये तीनों ही बेसिडियोमाइसीटीज के मेंबर्स हैं। लिखा है कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ बेसिडियोस्पोर्स, तो बेसिडियोमाइसीटीज के मेंबर्स बेसिडियोस्पोर्स की प्रेजेंट है, तो सही बात है। सेकंड देखिए कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल स्टेज, ये सेक्सुअल स्टेज एब्सेंस तो ड्यूटेरोमाइसीटीज का करेक्टर, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड देखिए ऑल आर पैथोजन, रॉन्ग बात। अगैरिकस, ठीक है, जिसको आप मशरूम ईटेबल मशरूम के नाम से जान रहे हैं, दैट इज नॉट पैथोजेनिक। नंबर 4 ऑल आर सैप्रोफिटिक इन नेचर, अगेन स्मट एंड रस्ट बन जाए पैरासिटिक नेचर के भी हैं, ठीक है, तो ये सारे ही सैप्रोफिटिक हैं, रॉन्ग बात हो गई। तो सही है आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 43 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर 1 diatomaceous earth is formed by the cell membrane of diatom। ओके, करेक्ट पूछा है और डायटोमेसियस अर्थ के लिए सेल मेम्ब्रेन टर्म दिया। इट इज कॉज्ड बाय सेल वॉल ऑफ डाइटम, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड है डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, करेक्ट बात। ओके, नंबर 3 डाइटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट इन वाटर बाय यूजिंग 2 फ्लैजिला, नो, ये तो डाइनोफ्लैजिलेट का करेक्टर है। डाइटम्स में तो फ्लैजिला सोमेटिक स्टेज में एब्सेंट है। नंबर 4 द वॉल्स ऑफ डाइटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल, नो, अनडिस्ट्रक्टेबल, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्वेश्चन 44 incorporated viral DNA to the eukaryotic host cell DNA is known as। यूकैरियोटिक होस्ट सेल में अगर वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट जुड़ जाता है तो बनता है प्रोवायरस, हम टर्म देते हैं प्रोवायरस। ऑप्शन नंबर 3 इज आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45 पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। नंबर 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, रॉन्ग स्टेटमेंट में 1 इनकरेक्ट हो गया। नंबर 2 सेल वॉल इज एब्सेंट इन प्लाज्मोडियम ऑफ स्लाइम मोल्ड, बिल्कुल करेक्ट है, प्लाज्मोडियम में सेल वॉल नहीं है, वॉल लेस होता है। नंबर 3 प्रोटिस्टा हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिल्कुल करेक्ट। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, तो प्लांट लाइक को आप फोटोसिंथेटिक बोलिए और फंजाई लाइक और एनिमल लाइक को हेटेरोट्रॉफिक बोलिए, करेक्ट है। नंबर 4 सम फंजाई आर ईटेबल, ऑफ कोर्स यस, अगैरिकस मशरूम ईटेबल मशरूम है, तो हम टर्म देंगे इनकरेक्ट में नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर।